Thank the Lord for this wonderful day. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, And most of all, thank Him for His presence with us. और इसलिए भी कि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ में, हम उसको धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Sing a few songs कुछ गीतों को क्यों ना हम गा लेंगे and worship Him. और प्रभु की उपासना करेंगे। I have found a friend in Jesus. गीत कहता, मैंने यीशु मसीह में ऐसा मित्र पाया, He is everything to me. वो मेरे लिए सब कुछ है। Hallelujah. हालेलुया। I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the lily of the valley. In Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley. In Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, I have all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the night and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Hallelujah. हालेलुया। Though all the world forsake me. गीत कहता है, चाहे सारी दुनिया मुझे त्याग दे। You know, sometimes we will know in our lives आप जानते हैं, कई बार हम अपने जीवन में इस बात को अनुभव किए हैं, and if we have not, we will come to know. और यदि नहीं तो हम इस बात को अनुभव करेंगे There's no friend like the friend in Jesus Christ. कि यीशु मसीह के समान कोई दूसरा मित्र हमें नहीं मिल सकता है। More than your father and mother, आपके माता पिता से भी ज्यादा करीब, more than your brother and sister, आपके भाई बहन से भी ज्यादा नजदीक, more than your husband and wife. आपके पति आपके पत्नी से भी ज्यादा करीब Jesus. यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। यीशु ने कलवरी दुख क्यों से लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई
खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न रहा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न रहा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं, खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। ओ दोस्तों ने तो छोड़ दिया था, कोई न रहा था तेरे ही सिवा। दोस्तों ने तो छोड़ दिया था, कोई न रहा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। Bless your name, Father. Bless your holy name, bless your holy name. तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। Give you glory, give you honor, give you praise. सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर तुझको देते हैं। Faithful God, faithful God. विश्वास योग्य परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति।
पुकारते रहे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Yes, Lord, we thank you प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं for all things you have done for us. हर एक उन आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन में किया है, And we worship you for who you are. और तेरी उपासना करते हैं प्रभु, तू कौन है जानकर। There is none like you, O Lord. तेरे समान दूसरा कोई नहीं। Bless your word to our hearts, we pray. अपने वचन को हमारे हृदय के लिए आशीष बना दे। Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की शक्ति दे प्रभु। Give us receptive hearts to receive. इस वचन को ग्रहण करने वाले हृदय हमें दे प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Amen. Shall we open our Bibles to 15th chapter of Luke's Gospel? आइए अपने बाइबलों को खोले लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय। It's a very, very familiar portion of scripture. We all know it. पवित्र शास्त्र का एक चिर परिचित भाग है और हम सब इससे जानते हैं। We are reading from verse 11. और 15 अध्याय और उसकी 11 आयत से हम लोग पढ़ लेंगे to verse 24. 11 से लेकर 24 आयत तक। And he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। And not many days after, the younger son gathered all together, took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। And he went and joined himself to a citizen of the country, that country, and he sent him into his fields to feed swine. इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। He would have fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father have bread enough and to spare, and I perish with hunger. जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। I will arise and go to my father and say unto him, Father, I have sinned against the heaven and before thee, and I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। And he arose and came to his father. When he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, ran and fell on his neck and kissed him. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। The son said unto him, Father, I have sinned against heaven again and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है
और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। But the father said to his servants, bring forth the best robe, put it on him, and put a ring on his hand, shoes in his feet, and bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive, he was lost and is found. And they began to be merry. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। Amen. आमीन। You know, Jesus was, if you read the first 2 verses, आप जानते, यदि आप इसके शुरू की 2 आयतों को पढ़ेंगे, you find there, आप पाते हैं, it says there that then drew near unto him all publicans and sinners for to hear him. सब चुंगी लेने वाले और पापी यीशु मसीह के पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। That's wonderful. ये अद्भुत बात है। Hallelujah. हालेलुया। We are trying to pull people हम into fellowships, लोगों को संगति में आकर्षित लोगों को करना चाहते हैं, and things don't work out well. और हम जो प्रयास करते वो काम नहीं आता। Here the story is different. लेकिन यहाँ पर देखिए, कुछ अलग ही दृश्य है। Sinners, पापी लोग publicans, और चुंगी लेने वाले लोग, those people who are looked down upon, ऐसे लोग जिनको उन दिनों में नीचे दृष्टि से देखा जाता था, they found in Christ something that the soul would be satisfied. वे यीशु मसीह में कुछ ऐसी चीज पाते थे जहां उनका प्राण तृप्त होता था। Jesus would say like this, यीशु मसीह इस प्रकार से कहते the थे, words I speak to you, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ they are spirit and they are life. वो आत्मा है और जीवन है। They are life-giving words. वो जीवन देने वाले वचन हैं। So the sinners are coming, और पापी वहां पर आ रहे थे, and the publicans are also coming. और चुंगी लेने वाले भी वहां पर आते थे। These were sort of outcast people. और ऐसे किस्म के ये लोग थे जिनको उन दिनों में वो तुच्छ जाने हुए वर्ग के थे। A good type of people would not like to associate with them. और अच्छे किस्म के लोग इन चुंगी लेने वालों के साथ में किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। But together with them is another party. परंतु इन सब के साथ में एक और वहां पर झुंड था। It says there, वहां लिखा है, the scribes and the Pharisees murmured, saying, this man receiveth sinners and eateth with them. पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। You know, the world is going through distress. आप जानते, आज दुनिया तो भयंकर तकलीफ से गुजर रही है। Man is struggling to come out of sin. मनुष्य अपने पापों से बाहर निकलने का यत्न कर रहा है। The devil has made all arrangements for man to fall into sin. और शैतान ने सारी योजना बना रखी कि मनुष्य को पाप में गिरा दे। And when he falls in there, और जब वो पाप में गिर जाता है, he feels condemned and he becomes lonely. वो अपने आप में दोषी और अपने आप को अकेला पाता है। And sometimes he would begin to think of ending his life. कभी कभी वो अपने जीवन को अंत करने की सोचता है। So Jesus was trying to explain to the people his mission. यीशु मसीह अपने लोगों को अपने उद्देश्य को बताने का प्रयास कर रहे थे। And third verse says, तीसरी आयत कहती है, and he spake a parable unto them, saying. तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। Then he began to speak to them in parables, तब वो उनसे दृष्टांतों में उदाहरण में बोलने so लगा, they might understand ताकि वो लोग समझ सके that he came to seek and to save that which was lost. कि यीशु मसीह इस जगत में जो खोए हुए हैं उनको बचाने के लिए और ढूंढने के लिए आया है। When the people were accusing Christ of going and visiting Zacchaeus' house, जब लोग यीशु पर आरोप लगा रहे थे कि तू जक्कई नाम के उस आदमी के घर गया था, doesn't he know that he's a sinner? क्या वो जानता नहीं कि जक्कई एक पापी कहलाने वाला And मनुष्य that is the है? time Jesus said, ऐसे समय में यीशु ने कहा, the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया So है। he gives them 3 stories, वो उनको 3 घटनाएं बताता है, 3 accounts over here. 3 अलग अलग दृष्टांत बोलता है। An account of a lost sheep, एक तो खोए हुई भेड़ का दृष्टांत, and then he gives another one of a lost coin. और दूसरा एक खोए हुए सिक्के का एक
घटना बताता है। And then he gives the one of a lost son. और उसके बाद एक खोए हुए बेटे का एक दृष्टांत वो उनसे कहता है। The Lord was doing the will of the Father. यीशु पिता की इच्छा पूरी कर रहे थे। The mission is to save sinners. उसका लक्ष्य था पापियों को बचाना। The Son of Man has come मनुष्य का पुत्र इसलिए जगत में आया to save that which was lost. ताकि उन्हें बचाए जो खोए हुए हैं। Again, Paul writing in Corinthians says, फिर पौलुस कुरिन्थ को लिखते हुए बोलता है, God was in Christ reconciling the world unto himself. परमेश्वर मसीह में होकर जगत को अपने साथ मेल कराता है। Sinners and publicans came to Jesus पापी लोग और चुंगी लेने वाले यीशु के पास आया करते थे because they found that this man has the solution for sin. क्योंकि उन्होंने पाया इस मनुष्य यीशु के पास में पाप का इलाज है। Through these parables, Jesus was talking to them. यीशु इन दृष्टांतों के द्वारा उन लोगों से कुछ कह रहा था। God is still in the business of restoring and saving people. कि सुनो लो, परमेश्वर अभी भी लोगों को बचाने और फिर से उनको स्थापित करने के काम में लगा है। Jesus went from village to village, यीशु मसीह एक गांव से दूसरे गांव जाता from city था, to city, नगर से नगर घूमता था, and healing the sick, वहां के बीमारों को चंगा करता, casting out demons, दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों को चंगा करता, preaching the gospel to them. और उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता The था। gospel of Jesus Christ, यीशु मसीह का शुभ संदेश वो उन्हें hallelujah, बताता is the था। power of God to salvation. वो यीशु का शुभ संदेश उद्धार के निमित्त सामर्थ्य है। One of the ways to return back to God परमेश्वर के पास लौट कर आने का एक तरीका है, is repentance. वो है पश्चाताप। Jesus began his ministry by preaching repentance. यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का शुरुआत पश्चाताप के प्रचार से किया। John the Baptist began his ministry by preaching repentance. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो आरंभ की अपनी सेवकाई पश्चाताप की घोषणा से किया। Disciples preached repentance, चेलों ने भी जाकर पश्चाताप की घोषणा की, for they knew repentance will bring forgiveness. क्योंकि उन्हें मालूम था कि पश्चाताप वहां पर क्षमा को लाएगा Repentance will bring healing, और क्षमा लोगों के जीवन में चंगाई लाएगा, not only to the spirit, the soul and the body. न केवल उनके आत्मा में परंतु उनके प्राण और देह में भी। Repentance will bring restoration. पश्चाताप उनको फिर से स्थापित कर देगा Repentance will bring reconciliation. और पश्चाताप उनको फिर से प्रभु से मेल करा देगा। Repentance will bring redemption. पश्चाताप उन्हें छुटकारा दे देगा। Repentance will bring freedom to the soul. पश्चाताप उनके प्राण को वो स्वतंत्रता देगा। It's not something which we have to look down on. ये ऐसी कोई बात नहीं जिसे हम नीचे दृष्टि से Is the देखें। primary step into the kingdom of God. परमेश्वर के राज का प्राथमिक कदम है वो। Repent, for the kingdom of God is at hand. पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। To enter his program, उसके कार्यक्रम में प्रवेश करो, to enter his kingdom, उसके राज्य में प्रवेश करने sinners can get inside. पापी लोग भी प्रवेश कर सकते हैं। Hallelujah. The हालेलूया। only thing God demands एक ही चीज जो परमेश्वर मांग करता है to repent. वो ये कि हम पश्चाताप करें। Amen. Amen. This is a wonderful story of this prodigal son. क्या ये अद्भुत घटना नहीं है एक उड़ाऊ पुत्र की? You find that he's gone off from his father's house. आप पाते हैं कि वो अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया। He takes all what is his and he wastes it all. संपत्ति का जो भाग उसका था उसे लेकर वो गया और सब कुछ उसने उड़ा दिया। He goes to a far country. लिखा है वो दूर देश को चला गया। Some place where you are free to do what you want. ऐसा दूर जहां पर जो मन चाहे वो कर सके। Some place where nobody watches you. ऐसा कोई दूर जगह जहां पर कोई आपको देख ना सके। There is nobody speaks into your life. जहां पर कोई आपके जीवन में सच्चाई ना बता सके। No one corrects you. वहां जहां पर कोई आपको सुधार के शब्द ना बोल पाए। Darkness is so wonderful for a season. अंधकार कुछ समय के लिए इतना अच्छा लगता है। There is pleasure in the world, ओ संसार में वहां पर मौज मस्ती है, but there is no joy. परंतु वहां पर आत्मिक आनंद नहीं है। Joy can only come from God. आनंद केवल परमेश्वर की ओर से हमें मिल सकता And this है। joy doesn't come with circumstances. और ये आनंद परिस्थितियों के साथ हमें नहीं मिलता। It is a gift of God. ये तो परमेश्वर की ओर से वरदान है। Amen. He आमीन। wastes his goods. ये लड़के ने अपनी संपत्ति उड़ा दी। Now our time has come. अब एक ऐसा समय आ गया There is famine in the land. उस देश में जहां वो था बड़ा अकाल पड़ा। Listen, सुनिए,
The way of the sinner पापी का जो मार्ग है always got trouble. वो हमेशा उसमें संकट जुड़ा हुआ है। Satan will take us so far and leave and run away. शैतान हमें कुछ दूरी तक लेकर जाता और फिर त्याग देता है। He promised so many things to Adam and Eve, उसने आदम और हव्वे से बहुत सी बातों का वायदा तो किया robbed them, और उन्हें लूट डाला, and then he was not seen anywhere और उसके बाद शैतान वहां नजर नहीं आया for a season. कुछ समय के लिए। Listen, सुनिए, this is what the world has to offer. आज दुनिया के पास देने के लिए यही है। Lies, झूठ, deception, धोखा, destruction, विनाश, kidnapping, अपहरण, murder, rape, हत्या, बलात्कार, violence, हिंसा, stealing. चोरी। That's the way the world goes on. दुनिया इन्हीं सब के साथ चलती है। And remember, परंतु याद that's रखें, only for a season. ये सब कुछ ही समय तक रहता है। One day we all have to give an account to God. एक दिन आएगा जब हम सभी को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। And when famine struck, और जब अकाल वहां पड़ा, friends are gone. दोस्त भी छोड़ गए। When there is no money, friends go. जब पैसा नहीं रहता, मित्र साथ छोड़ देते हैं। Now he's found alone. अब वो लड़का अपने आप को अकेला पाता है। You might be in that situation. हो सकता आज कोई ऐसे ही परिस्थिति में है। Everybody's gone. हर एक जन साथ छोड़ दिए। You are there आप वहां हैं to fend for your own self, to fill your stomach. अपने स्वयं की रक्षा करने, अपने स्वयं की भोजन की व्यवस्था करने। So he goes and finds some job, ये लड़का जाकर कहीं नौकरी ढूंढता है, the most lowest one he gets. और जो नौकरी मिलती वो सबसे निम्न किस्म की। Go and feed the swines. जाकर सुअरों को चराने का काम। Sometimes God will bring us to a place कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसे नीचे स्थान में लाता है where you will realize. जहां पर आप बैठकर एहसास करने लगते हैं। Realization will always bring about repentance. एहसास करना हमेशा पश्चाताप को लेकर आता है। What is realization? एहसास करना क्या है? An act of becoming fully aware of something that is a fact. कोई चीज जो हकीकत है उसकी सत्यता को के बारे में आपको एहसास होना, Awareness, उसके बारे में जागरूक होना, a state of understanding or becoming aware of something. समझ की वो स्थिति जहां पर आपको चेतना आती है। And the scripture says, पवित्र शास्त्र बोलती है, when he had come to himself, जब ये लड़का अपने आपे में आया, began to think. तब सोचने लगा। Thank God for memory, प्रभु का धन्यवाद हो ऐसी यादों के लिए, remembrance. यादों के लिए। The scripture says, पवित्र शास्त्र बोलती है, he came to himself. ये लड़का अपने आपे में आया। We sing on song, हम एक गीत को गाते हैं, precious memories. बहुमूल्य यादें Coming somewhere to my soul. मेरे प्राण में कैसी वो आती हैं। We got to think back sometimes. कभी हमें भी चाहिए कि हम बैठें और पीछे मुड़कर याद करें। Recollection of all that has been past. वो जो बात बीत गई है, उन बातों को स्मरण करें। Flashback. पीछे मुड़कर जरा देखना, Recall याद करना उन समयों को, those days that have gone. वो सुंदर दिन जो अब निकल गए, चले गए। You know, sometimes when you're away from home, आप जानते जब कभी आप घर से दूर रहते हैं, you're staying in a hostel, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, or maybe with some friend, या फिर दूर किसी दोस्त के साथ रहते हैं, and there are moments in your life और आपके जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, you think of your home. आप वहां बैठकर अपने घर को याद करते हैं। How secure you will be. कितना सुरक्षित वहां पर वो होता है। In spite of all the wrong you will do, you will never do. जो गलतियां आपने की उसके बावजूद भी You're always welcome home. घर में हमेशा आपका स्वागत है। So this boy thinks of his home. ये लड़का अपने घर के बारे में सोचता है। Listen, सुनिए, remorse
and repentance, there is difference. किसी चीज को लेकर अत्यधिक खेद होना और पश्चाताप दोनों में अंतर है। Remorse is deep regret or guilt for a wrong we have committed. कोई गलती करने को लेकर हमें बहुत ज्यादा खेद होता, ये एक बात होती है। Strong feeling of guilt, अपराध का एक बड़ा बोध होता है। or regret of what we have said, what we have done. हमने क्या कह दिया या हमने क्या कर दिया, उसको लेकर हमें बड़ा खेद होता है। Our conscience is so awake हमारा विवेक इतना जगा हुआ है उस गलती को लेकर that it speaks to us. कि वो हमसे बोलता है। We should not have seared conscience. हमें अपने विवेक को किसी प्रकार से ऐसा आग से उसे जलाना नहीं चाहिए Dead conscience. जहां पर विवेक मर जाए। Some people, they don't feel anything. कुछ लोगों को एहसास नहीं होता। They might abuse, they might fight with somebody. वो अपशब्द बोलते हैं, किसी के साथ लड़ते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं होता। They think they are done it right. उनको लगता कि हमने कुछ गलत नहीं किया। It is all because their conscience is dead. वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर का विवेक मरा हुआ है। But when your conscience speaks, परंतु जब कभी आपका विवेक आपसे बोलता, when the Spirit of God speaks to you, जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर से बात करने लगती है, you see, just feeling sorry is not enough. देखिए किसी चीज को लेकर आपको दुख होना या खेद होना काफी नहीं है। Remorse, if it's not done anything, if it doesn't turn to repentance, it will bring destruction. यदि खेद होने के बाद आप उसको लेकर पश्चाताप नहीं करते, मन नहीं फिराते हैं, तो विनाश होता है। Some people have remorse and they commit suicide. कुछ लोगों को अत्यधिक खेद होकर वो अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। Why did I do this? Why did this happen? क्यों इसे करे, क्यों ये हो गया? Wait a minute. जरा रुके, Don't have to commit suicide. आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। Let your remorse be changed into repentance. आपको जो खेद हो रहा है उसको मन फिराने में बदल दें। Repentance is the action of your will. मन फिराना है, पश्चाताप आपके मर्जी का एक कदम है। This is not a feeling. ये एक भावना नहीं है। Remorse is a feeling. और खेद होना एक भावना का नाम है। Repentance is action. परंतु पश्चाताप करना, मन फिराना एक कदम है। You know, repentance is receiving one's actions, feeling of regret of past wrongs, which is accompanied by commitment to the actual action. बीते समय में किए गए पाप या गलत कदम को लेकर अत्यधिक जो खेद होता है, वो एक बात होती है। This action shows and proves the change is for better. और जो कदम हम लेते वो ये बताता है कि एक परिवर्तन बेहतर के लिए आने वाला है। That means what we are saying is, हम जो कह रहे हैं इसका अर्थ है, your will, आपकी जो मर्जी है, you choose to do something. आप कुछ चुनते हैं, कुछ तय करते हैं कि मैं अब कुछ करूंगा। This boy with remorse, he could have sat there whole his life and get God destroyed. ये लड़का दुख होते होते वहीं बैठा रहता तो वहीं पर मरकर नाश हो जाता। He became somebody's servant, maybe. किसी का नौकर जिंदगी भर बन के रहता, Maybe become a beggar after some time. या फिर कुछ समय बाद भीख मांगने वाला भी बन सकता था। But his decision to go back, परंतु इस लड़के का ये निर्णय, ये कदम कि मैं उठकर अब जाऊंगा, and his decision to repent, और उसका ये निर्णय कि मैंने पाप किया, मैं इससे मुड़ूंगा, that was the opening for his better life. ये उसका कदम उसके बेहतरीन जीवन के लिए एक शुरुआत कर दिया। He got up. वो लड़का उस जगह में खड़ा हुआ। The scripture says like this. बाइबल में इस प्रकार से लिखा है। Amen. आमेन। He says here, यहाँ लिखा है 18th verse. 18 आयत में, If you read the 17th verse, he says, he came to himself and he said, how many hired servants my father have had bread enough to eat and spare. 17 आयत में तो लिखा है, जब वो अपने आपे में आए तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। That is reflection. ये पीछे मुड़कर अपने अच्छे दिनों को याद कर रहा था। Remind me, प्रभु मुझको याद दिला। dear Lord. प्रिय प्रभु, Sometimes we become somebody. कभी ऐसा होता हम दुनिया में कुछ बन जाते We forget और हम भूल जाते हैं our old friends. अपने स्वयं के दोस्तों को, We forget our city. हम अपने शहर को भूल जाते, Forget our people.
अपने उन साथ के लोगों को भूल जाते, forget the church, कलीसिया को भूल जाते, because now you have everything. क्योंकि अब आपको लगता आप कुछ हो गए हैं। But remember, परंतु याद रखें, we always need people around us. हमें हमेशा अपने आसपास लोगों की जरूरत है। And never forget those who have been a help or source of help to you in the beginning. और कभी ना भूलें उन लोगों को जो आपके लिए मदद का कारण आरंभ में रहे हैं। My father's house, there are many servants, have enough bread to eat and spare. कहता है मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है I perish with और hunger. मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। What a realization. क्या उसने सही एहसास किया? I perish. मैं मर रहा हूँ। Sin will always take its toll. पाप हमेशा लोगों को विनाश की ओर ले जाता है। He says something to himself. ये लड़का फिर अपने आप से कुछ बोलता है, I will arise and go to my father. मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा I will say unto him, Father, और उससे कहूंगा कि पिताजी, I have sinned against heaven and before thee. मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। Hallelujah. I have sinned against God. मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। I have sinned against the house, your family. मैंने अपने पिता के घर के विरुद्ध में पाप किया है I am no more worthy to be called thy son. और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। And make me one as one of your hired servants. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। I won't be asking you for pay, for anything मैं of तुझसे son should receive. बेटे का जो अधिकार मिलना चाहिए था वो मैं कुछ नहीं मांगूंगा। I'll work hard. मैं बहुत मेहनत करूंगा, You pay me. तू मजदूर के समान मुझको रख ले। See this repentance. इस लड़के का पश्चाताप देखिए। And he arose. तब वो उठा। This is action. ये था पश्चाताप का कदम। Just remorse would not have helped him. केवल अपनी गलती का एहसास होना मददगार नहीं होगा, He has to get up. उसे पश्चाताप करके उठना है। After we have prayed a prayer, sinner's prayer. पापी की प्रार्थना करने के बाद, After we have asked God for forgiveness, परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगने के बाद, remember Jesus always said like this. याद रखिए यीशु मसीह ने हमेशा ये बात कही, Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। Rise, take up your bed and walk. उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। Your sins are forgiven thee. तेरे पाप क्षमा कर दिए गए। Go and sin no more. जा और अब फिर पाप नहीं करना। He never remembers them all. वो कभी उनको फिर याद नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। And here, और यहाँ this पर boy takes his journey. ये लड़का उठकर अपने पिता के घर की ओर जाता है Realization brought acknowledgement और इस बात का एहसास उसको ये चीज याद दिलाया that I have sinned. कि मैंने पाप किया है। Amen. आमेन। There is no shame in asking God to forgive us. परमेश्वर से क्षमा मांगने में कोई शर्म की बात नहीं। No shame in saying, God, forgive my sins. प्रभु से ये कहना, प्रभु मुझे माफ कर दे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। Instead, it's going to bring about a blessing. इसके बजाय आपकी वो प्रार्थना आपके लिए बड़ी आशीष लेकर आएगी। I sinned against heaven, that is God. कहता है मैंने स्वर्ग के विरुद्ध यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है And against you, my Father. और तेरे विरुद्ध मेरे पिता मैंने पाप किया। He was willing to pay the penalty. वो उस अपराध का कीमत चुकाने के लिए तैयार था To work as a servant. और वो था एक मजदूर के समान काम करने। Definitely, he'll get one-time meal. निश्चित तौर से उसे एक समय का भोजन तो वहां मिल जाएगा, But he never knew परंतु उसको पता नहीं था the Father's heart. पिता का दिल कैसा होता है। He says, and he rose and came to his father. लिखा है वो उठकर अपने पिता के पास चला। When he was yet a great way off, his father saw him, had compassion, ran and fell on his neck
and kissed him. वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। Hallelujah. God is watching. परमेश्वर देख रहा है। One step. एक कदम। When we acknowledge God, acknowledge our sins, जब हम अपने पापों को मानते हैं, God is faithful and just to forgive us all our sins. परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे हरेक पापों और अपराधों को माफ करने And के to लिए cleanse us from all unrighteousness. और सारे अधर्म को हमारे जीवन से माफ करने वो तैयार If we है। confess our sins, यदि हम अपने पापों को मान लें, confess it before God, परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लें, not before any man. किसी इंसान या मनुष्य के सामने नहीं। If you have deprived or hurt somebody, we can ask forgiveness for them. यदि हमने किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाया, हम उस व्यक्ति से माफी मांग सकते हैं। But mainly he says, I have sinned against God. परंतु ये कहता मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। Bible says, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive us all our sins. बाइबल कहती है यदि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को, अपराधों को मान लेते हैं तो वो उसे माफ करने, सारे पापों को माफ करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य And to है। cleanse us from all unrighteousness. और सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए वो तैयार The है। blood of Jesus. यीशु मसीह का खून Hallelujah. Hallelujah. Speaks better things than the blood of Abel. वो तो हाबिल के खून से भी बढ़कर बड़ी बातें कहता Blood of है। Abel calls for vengeance. वो जहाँ पर हाबिल का खून तो बदले की मांग करता Blood है, of Jesus calls out for pardon. यीशु मसीह का लहू क्षमा को पुकारता है। Amen. Amen. After we repent, जब हम पश्चाताप करने के बाद there has to be reconciliation. वहां पर एक मेल का होना जरूरी है, Reunion. फिर से एक होना जरूरी है। He's coming on towards his father's house. वो अपने पिता के घर की तरफ चला आ रहा है। The old man is watching every day. बूढ़ा पिता रोज ताकता रहता था He maybe sees a beggarly person coming towards his house. और वो देखता है एक भीख मांगने वाले मनुष्य के समान कोई उसके घर की ओर आ रहा The है। same child who ran in his house when he was small. वही लड़का जो छोटेपन में उसके घर के अंदर दौड़ता भागता था, The one who sat on his lap. जो उस दौड़कर उसके गोद में चढ़ जाता The था, one with whom he played. वो जिसके साथ में वो पिता खुद खेलता था, The one with whom they sat on a table and dined together. जिसके साथ एक मेज में बैठकर वो खाया करता था, He had gone. वो बेटा अब चला गया He था। thought the world will give him everything. वो ये सोचकर वो बेटा गया कि दुनिया में उसे सब मिल जाएगा। For sometimes there is glitter in the world, दुनिया में कुछ समय के लिए चमक धमक है, but it all will fade away. परंतु थोड़े ही समय में जल्दी वो गुजर The world जाएगा। passes away, दुनिया गुजरती जाती and the lust of the world goes with और it. संसार के अभिलाषा भी मिटते जाते हैं, But the word of God shall abide forever. परंतु परमेश्वर का वचन सदा काल तक बना रहेगा। They who do the will of God, वे जो परमेश्वर की मर्जी पूरा करते, they will abide forever. वे सदा काल तक बने रहेंगे। His father was watching. पिता तो दूर से देख रहा God था, is watching. परमेश्वर पिता भी देख रहा। Who knows the sinner will repent tonight? वो जानता जब पापी मनुष्य पश्चाताप करेगा। Just got to say, Lord, I am sorry for my sin. ओ जब हम कहते प्रभु मैं माफी मांगता हूँ, मैंने पाप किया है, Help me, Lord Jesus. प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। You will hear those words saying, आप उसकी उस आवाज को कहते सुनोगे, You are forgiven. तू क्षमा किया गया On the है। cross of Calvary, कलवरी के क्रूस में I shed my blood for your sin. मैंने अपने लहू को तेरे पाप के लिए ही बहाया। I gave my life for you, मैंने अपना जीवन तेरे ही लिए दिया, that you might receive forgiveness. ताकि तुझको क्षमा मिल जाए। Hallelujah. हालेलुया। His father saw him far off. पिता ने दूर से उसको देख लिया, No shoes in his feet. पाँव में जूते नहीं, Clothes are torn. कपड़े जो पहना है फट चुके हैं, All his precious jewels are no more on his hands. उसके हाथों में शरीर में जो महंगे जो गहने थे वो कुछ भी नहीं है। He drags himself, वो किसी तरह अपने आप को घसीटते घर की ओर आ रहा है, hungry and depressed and fatigued.
भूखा, थका और हारा हुआ दिख रहा, not knowing what the answer from the Father will be. ये नहीं जानता कि पिता मेरी बात सुनकर क्या बोलेगा। Anyway, I have decided तो भी मैंने तो ये सोच लिया I will है, stay in the outside compound. मैं पिता के घर के बाहरी आंगन में ही जिंदगी काट Maybe लूंगा, the things that the servant will throw, I will fill my stomach. और अंदर के नौकर भी जो बचा हुआ फेंकेंगे उसको भी मैं खाकर जिंदगी जी लूंगा। He has not known the heart of the Father. उसने अपने पिता के दिल को नहीं जाना था। The scripture says, वचन बोलती है, and his father saw him far off. उसके पिता ने दूर से ही उसको देखकर, Scripture says he had compassion. वचन कहती है उसको देखकर तरस खाया। Mercy rejoices against judgment. करुणा न्याय के विरुद्ध आनंदित होती है। This man needs to be punished. जब एक तरफ आवाज कहती है मनुष्य सजा के योग्य है, He should not be entertained anymore. और अब इसे और नहीं रोका जा सकता। Let him stay where he wants to. जहां वो रहना चाहता है वहां रहने दो। That was your choice, son. बेटे, ये तूने तय किया है कि तू मजदूर रहेगा। No, he didn't say all that. नहीं, किंतु पिता ने ऐसा कुछ नहीं The कहा। scripture says, बाइबल में आगे लिखा when he है, saw him, he had compassion. पिता ने उसे देखकर तरस खाया। God has compassion on you परमेश्वर आपको देखकर तरस खाता है, and on me. मुझको भी देखकर। What is man? मनुष्य क्या है That you are mindful of him. प्रभु, कि तू उसके ऊपर उसकी ऐसी सुधि लेता है। When he saw him, जब पिता ने उस लड़के को देखा, he had compassion. बहुत दया। When he saw the multitude, Jesus had compassion. यीशु मसीह भीड़ को जब देखा तरस से भर When गया। he saw the leper, he had compassion. कोढ़ी को देखा तरस से He भर was गया। moved with compassion. वो लोगों को देखकर तरस से भर जाता Our था। God is a God of compassion. हमारा परमेश्वर लोगों पर तरस करने वाला Whatever your प्रभु। sin might be. आपका पाप चाहे कोई भी क्यों ना The हो। scripture says, बाइबल धर्मशास्त्र he बोलती है, devoured his living with prostitutes. वो अपनी जिंदगी को बांट दिया उन वेश्याओं और उन लोगों के बीच में। The elder brother knew और बड़ा जो बेटा था, बड़े भाई को मालूम था what he was doing, his younger brother was doing. छोटा बेटा कैसे वेश्यावृत्ति में, कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ाया। Because he said that. क्योंकि बड़ा बेटा ऐसा बोलता भी है। He's devoured his living with all the evil people. कहता है तेरे इस छोटे बेटे ने अपना सब कुछ जो था कुक संपत्ति Verse 30. 30 में वेश्याओं में उड़ा दी। But as soon as this thy son is come, which has devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है वो आया, तो तू उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। See the language he's using. देखिए जो भाषा वो बोल रहा था, He's not saying my brother, वो ये नहीं कह रहा था मेरा भाई, your son. वो कह रहा था तेरा बेटा। Anyway, let's come to this point. यहाँ हम Verse वापस 20 says, and the father ran and fell on his neck and kissed him. पिता दौड़कर उससे गले लगाता है और चूमने लगता है। That filthy, ragged, stinking son. दुर्गंध से भरा हुआ फटे हाल में वो लड़के को वो लिपट लिया। Feeble and hungry. इतना दुबला और इतना भूखा, Nothing good कुछ भी उसमें अच्छाई नहीं दिख रही, remained in him. उस लड़के में नहीं थी। And the son said, Father, I'm not worthy पुत्र ने कहा, to be called thy son. पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। You know what the father said? आप जानते पिता ने क्या कहा? Said to his servants, पिता ने तो अपने दासों से कहा, bring forth the best robe. झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। When there is reconciliation,
जब वहां पर मेल होता है, God was in Christ reconciling the world unto himself. परमेश्वर यीशु मसीह में जगत के साथ मेल किया। The world was sinful. दुनिया तो पाप में डूबी हुई थी। God was reconciling the world to himself. परमेश्वर उस बुरी दुनिया को अपने साथ मेल करा When we रहा are reconciled, था। जब आप मेल होता है आपका, everything is restored. तब सब चीज आपको जो निकल गई थी फिर दोबारा मिलता है। Hallelujah. Hallelujah. Father said, bring the best robe. पिता ने कहा सबसे अच्छा कपड़ा लेकर आओ। Go to the wardrobe, search for the best one. जाओ घर के अंदर देखो सबसे बेहतरीन वस्त्र कौन सा है। Amen. आमीन। That's what God does. परमेश्वर भी यही करता है। He clothes us with the righteousness of Jesus Christ. यीशु मसीह की धार्मिकता हमें पहनाता है। Put a ring on his finger. उसके उंगलियों में अंगूठी पहनाओ। The authority of sonship. पुत्र होने का अधिकार का चिन्ह है। Shoes on his feet. पाँव में जूतियां पहनाओ Kill the fatted calf. और पला हुआ पशु लाकर मारो। And tell the singers to prepare for the welcome song. और गाने वाले लोगों को बुलाओ, स्वागत का गीत गाने के लिए उनको It's तैयार a करो। glorious welcome. एक शानदार स्वागत When करूंगा। one sinner repents, जब एक पापी कहीं मन फिराता there है, is joy in heaven. स्वर्ग के अंदर वहां अद्भुत There आनंद is joy होता among है। the angels of God. परमेश्वर के दूतों के बीच आनंद मनाया जाता है। None of his sins are remembered anymore. उसके पुराने पापों में से कोई स्मरण नहीं किया जाता। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Restored वापस स्थापित किया with splendor. बड़े वैभव पूर्ण तरीके से। There is music, वहां संगीत वाद्य यंत्र, and all the neighbors around are listening. आसपास के पड़ोसी भी संगीत सुन रहे। What's happened? क्या हो गया घर में? Why is there happiness? क्यों आज एकाएक कितनी खुशी मनाई जा After रही है? years, after years, कई सालों के बाद there is smile on the old man's face. ये बूढ़े पिता के चेहरे में एक बार फिर से खुशी झलक रही है, He's home at last. क्योंकि बेटा आखिरकार घर पहुंच गया। That was the whole purpose of God. परमेश्वर का पूरा उद्देश्य इस जगत के लिए वही है, That man will repent and return to him. मनुष्य मन फिराकर अपने परमेश्वर पिता के पास लौट आए He will forgive the sins और वो स्वर्गीय पिता उसके पापों को माफ कर and receive देगा him not as a sinner, और उसको एक पापी के रूप में ग्रहण नहीं करेगा, but as a son. परंतु पुत्र के रूप में। As many as received him, जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, to them gave he the power to become the sons of God. उनको उस परमेश्वर ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। I like to imagine मैं कल्पना करना चाहता हूँ, what a relief. क्या ही खुशी था। Looks at the food on the table. मेज में तैयार उन सारे भोजन को देखता है। Home at last. आखिरकार मैं वापस अपने ही घर आ गया। What a relief. क्या ही चैन मिला है। In my father's house. मेरे पिता के घर में चैन है। The words of the father rang in his ears. पिता के वो शब्द गूंज रहे थे अभी भी उसके कान में। This my son ये जो मेरा बेटा was dead मर गया था, and is alive again. वो फिर जी गया है। He was lost खो गया था, and he is found. अब मिल गया है। Hallelujah. हालेलुया। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों, Whatever your condition might be, आपकी दशा चाहे कुछ भी क्यों ना you might have gone away far from God, हो सकता आप परमेश्वर से बहुत दूर कहीं चले गए lived a life of sin, और पाप का जीवन जिए, and you know और आप जानते हैं within yourself अपने स्वयं के हृदय के अंदर that you're still lonely कि आप अकेले हैं, because you're far from your father's house. क्योंकि आप अपने पिता के घर से बहुत दूर हैं। Return. लौट के आ जा, And the only way to return और लौटने का एक तरीका है, is to repent. वो है मन फिराना, पश्चाताप। What is repentance? मन फिराना क्या है? Just change of direction of your will.
अपनी मर्जी की जो दिशा है चलने की, उस दिशा को बदल लेना। Amen. आमेन। Will you do that? क्या आप आज इसे करेंगे? God is ever willing to forgive. परमेश्वर तो हमेशा तैयार है आपको माफ करने। And remember one thing. और एक बात को याद रखें, When God forgives, जब परमेश्वर ने आपको एक बार माफ कर दिया, He forgets. वो आपके पुराने पाप फिर याद नहीं रखते। You might remember, आपको संभव है याद हो, He will not. परमेश्वर उन्हें फिर याद नहीं रखता। He never reminded David of his sin. परमेश्वर ने दाऊद को कभी उसके पिछले पाप को स्मरण नहीं He दिलाया। did remind him from where He brought him. ये याद दिलाया कि मैंने तुझे कहाँ भेड़ बकरियों को चराने के बीच से उठाया है, But never परंतु कभी भी उसके पाप को about his नहीं, sin. उसके गुनाह को नहीं दिलाया। This time इस समय प्रियो, is your time ये समय आपका है to receive God's forgiveness. कि आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण करें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. जीसस माय लॉर्ड। Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry, while on others thou art calling. Do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling. Do not pass me by. Lord, we thank you that you came to seek and to save प्रभु हम that तुझे which was lost. धन्यवाद देते हैं, तो इसलिए आया कि तू जो खोए हुए थे उनको ढूंढे और बचाए। Thank you, Lord, that you are ever willing to forgive us. धन्यवाद पिताजी, क्षमा करने के लिए तू हमेशा तैयार है। When we read your word, we begin to understand something of your own heart. जब हम तेरे वचन को पढ़ते तो तेरे स्वयं का दिल को हम जान पाते हैं। Let it be so today. आज के दिन ऐसा होने दे प्रभु। Many a sinner will repent बहुत से पापी पश्चाताप करें, and receive forgiveness of you, तुझसे क्षमा को प्राप्त कर ले and be reconciled unto you. और एक बार फिर से उनका मेल तेरे साथ हो जाए प्रभु। And we know, Lord, और हम इस बात को जानते प्रभु that you will restore everything which is lost. कि जो चीज उन्होंने खो दी है वो सब दोबारा तू उनको लौटा देगा। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. 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 We take the offering. समय अपनी भेंट को हम दे सकेंगे। Thank you for your prayers. Thank you for your support. आपकी प्रार्थनाएं और आपके सहयोग के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Continue to pray for us. हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। Whichever church you're going elsewhere, support your church, support your pastor. आप जहाँ कहीं भी जिस संगति में भी आप जाते हैं वहाँ पर उस कलीसिया के पासबान का आप मदद करें, सहयोग करें Become a blessing. और आशीष के कारण बन जाए। Witness to people. लोगों को गवाही दें Bring them into the kingdom of God. और उनको परमेश्वर के राज्य में लेकर आए। Amen. आमीन। We sing a chorus. इस समय क्यों ना हम एक कोरस को गा लेंगे And wherever you put your offering, just put it there. और आप इस दौरान जहाँ कहीं भी आप अपने भेंट को एकत्रित कर रहे हैं वहाँ पर एकत्रित कर सकते हैं। Give your tithes in your own church.
अपने दशमांश को आप जिस संगति में जाते वहां पर दें। Amen. आमीन। Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Father, we thank you for all the good gifts you give to us. पिताजी, हम तुझे धन्यवाद देते उन हर एक भले वरदानों के लिए जो तू हमें देता है। And out of what you have given to us, we return to you. जो कुछ भी तूने हमें दिया उसमें से हम थोड़ा अंश ही तुझको देते हैं। We pray that you would bless those who gave. हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, जितने लोगों ने दिया उन सबों को तो आशीष देना। Bless those who could not give. जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष दे। May they lack nothing in their life. तेरे लोगों को अपने जीवन में कोई भी वस्तु की घटी ना हो। Surround them with your blessing, O God. अपनी आशीषों से इन प्रियों को घेर कर रख। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. Amen. God bless you all.